Hello, my dear students. Hope all of you are well in during the pandemic COVID-19 in your home. So, guys, maybe your classes will be reopened in the month of November, but it's not compulsory to all students to attend the classes in colleges. So, the online learning will going on, and maybe also in the month of December and January, and your examination of semester examination of this semester academic session 2021 may be offline mode in college campuses. So guys, don't waste your time, keep studying, watch my videos, give some feedback, give some comment, and hope all of you are watching my video regularly and take the basic concepts of particular topic regarding your subject in your curriculum of IKG PTU Kapurthala. So guys, kindly I request you that if you are the student of electrical engineering or faculty of electrical engineering department across the country, kindly subscribe my channel and share with your friend if you are the faculty or a student of any engineering college in Department of Electrical Engineering. Because after 15th October, I will also start a recruitment video to all of you, and I hope all of you are third year as well as final year students are already submitted the GATE 2021 examination form. If you are not submitted till date, the last date of the submission will be extended without fine will be 7th October. So go and submit your GATE 2021 examination form. And you have also an option to participate in other subjects also, like instrumentation engineering. If you are from core electrical engineering branch, you have an option to appear in a GATE instrumentation subjects also. So guys, today I am going to discuss a power in three-phase circuit. Three-phase power in a power system, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. Before that, I will suggest you, for getting more knowledge and more concept, you will refer these books written by various top class professors in India. So guys, before going to start a three-phase power system, I will explain you the two mechanism of A star as well as delta and the relation between current and voltage between them. तो जब हम लोग स्टार की बात करेंगे बेटा, तो स्टार की केस में मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन टू लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज वोल्टेज. आपने जब सर्किट एनालिसिस पढ़ा होगा, स्टार डेल्टा मैकेनिज्म पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो फेज वोल्टेज होता है दैट विल बी √3 टाइम्स ऑफ द लाइन वोल्टेजेस उसके होता है. ठीक है. उसके अलावा जो आपका ईच लाइन टू लाइन वोल्टेज लीड्स जो है कोरस्पॉन्डिंग फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री. इसी 30 डिग्री के कारण जो आपका है वो √3 से आगे उसमें इफेक्ट आता है. नेक्स्ट जो आपका लाइन है वो है लाइन टू लाइन वोल्टेज फ्रॉम ए बैलेंस सेट. मींस स्टार में जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है ये वो पूरा का पूरा एक बैलेंस मैकेनिज्म प्रिपेयर करता है. दूसरा है आपका वोल्टेज इन ए डेल्टा सर्किट. जब मैं वोल्टेज की बात करूंगा डेल्टा सर्किट में, तो इन द केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन द लाइन एंड फेज वोल्टेजेस आर इक्वल एंड 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम. यानी कि अगर मैं डेल्टा के केस में बात करूं तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है, और जो आपका लाइन वोल्टेज है वही फेज वोल्टेज के इक्विवेलेंट होता है. अब हम बात करते हैं करंट की. करंट की जब बात करेंगे तो अगेन हमारे पास दो मैकेनिज्म होंगे. पहला मैकेनिज्म होगा हमारा स्टार और दूसरा मैकेनिज्म होगा हमारा डेल्टा. तो जब मैं स्टार के केस में बात करूंगा तो इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन द लाइन एंड फेज करंट आर इक्वल एंड 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम. तो जो आपका आईपीएच होता है और वीपीएच होता है दोनों जो होगा बिल्कुल ही इक्वल होगा इन द केस ऑफ स्टार सर्किट. जब मैं डेल्टा सर्किट की बात करूंगा, करंट इन ए बैलेंस डेल्टा सर्किट, तो यहां पे थोड़ा सा करंट में वेरिएशन आएगा. The magnitude of the line current is √3 times the magnitude of the phase current. Means IL is equal to √3 IPH. ये होगा. सिमिलरली जैसे वोल्टेज का उसमें हो रहा है,
करंट का डेल्टा के कनेक्शन के केस में होगा। और अगर मैं सेकेंड लाइन क्या देख रहा हूं, ईच लाइन करंट लैग्स इट्स कोरस्पॉन्डिंग फेज करंट बाय 30 डिग्री। तो जो इसका करंट है वो एक दूसरे से लैग करेगा 30 डिग्री के टर्म्स में। तो ये है आपका द वैल्यू ऑफ करंट इन द केस ऑफ स्टार एज वेल एज डेल्टा कनेक्शन। आपसे कई बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टार का है कि डेल्टा का है। बट आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब मैं स्टार कनेक्शन की बात करूंगा तो स्टार कनेक्शन के केस में VL इज इक्वल टू √3 VPH ही होगा। और जब मैं डेल्टा कनेक्शन की बात करूंगा तो उस केस में IL इज इक्वल टू √3 IPH ही होगा। और जब मैं स्टार कनेक्शन की बात करूंगा, करंट, फेज करंट और लाइन करंट बोथ आर इक्वल। और जब मैं डेल्टा की बात करूंगा तब फेज वोल्टेज एज वेल एज लाइन वोल्टेजेस आर सेम। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पावर इन ए 3 फेज सर्किट या 3 फेज सिस्टम की बात। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्टिव पावर पर फेज क्या है। तो जब मैं एक्टिव पावर पर फेज की बात करूंगा तो एक्टिव पावर पर फेज के केस में अगर मैं सिंगल फेज का सर्किट ले रहा हूं, दैट विल बी IPVP इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर लिखिए या आप cos फाई लिखिए, बोथ आर सेम थिंग। तो टोटल एक्टिव पावर अगर मैं 3 फेज केस की बात करूंगा तो वो होगा 3VP। तो इन द केस ऑफ 3 फेज एक्टिव पावर की बात जब हम करेंगे 3VP/IP इंटू cos फाई। तो अभी ये जो मैंने बैक में आपको कंसेप्ट्स बताए हुए हैं, इस कंसेप्ट्स को आप देखिए। उसमें मैंने बताया है कि VP और IP जो होता है वो स्टार और डेल्टा के केस में अलग अलग। तो फाइनली हमने पावर इज इक्वल टू क्या लिखा, 3VP/IP cos फाई। इफ IL एंड VL आर RMS वैल्यू ऑफ लाइन करंट एंड द लाइन वोल्टेजेस रेस्पेक्टिवली, then for delta connection VP is equal to VL and IP is equal to IL by √3। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले स्लाइड्स में। Therefore P is equal to √3 VL IL cos phi। Similarly in the case of a star connection, VP is equal to VL upon √3 and IP is equal to IL। Therefore finally power is equal to √3 VL IL cos phi। तो अब अगर मैं दोनों केस में से कोई सा भी केस देखता हूं, चाहे वो स्टार कनेक्शन हो चाहे वो डेल्टा कनेक्शन हो, बट फाइनली इन द केस ऑफ 3 फेज सर्किट हमें पावर का इक्वेशन मिलता है P इज इक्वल टू 3VP/IP cos फाई या P इज इक्वल टू √3 VL IL cos फाई। ये दोनों ही इस सर्किट को फाइनली हमारे पावर के इक्वेशन है। अगर मैं फेज के केस में बात करूंगा तो दैट विल बी 3VP/IP cos फाई। अगर मैं लाइन के बाद में लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बारे में बात करूंगा तो √3 VL IL cos फाई। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एक्टिव पावर इन द केस ऑफ 3 फेज सर्किट। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके पास कि ये 3 टाइप के जो पावर है हमारे पास, जनरली आपके टॉपिक में भी लिखा हुआ है लास्ट में कि रिएक्टिव पावर को एक्सप्लेन करना है। तो ये कौन कौन से पावर है? तो पहला है हमारा एक्टिव पावर, दूसरा होता है अपेरेंट पावर एंड तीसरा होता है रिएक्टिव पावर। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और इनके यूनिट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। दैट्स व्हाई टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर फंडामेंटल ऑफ दीज 3 पावर्स। तो पहला जो एक्टिव पावर, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहता है एक्टिव पावर? द पावर विच इज एक्चुअली कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड इन एन AC सर्किट is called true power और एक्टिव पावर और रियल पावर। ये तीनों एक ही होते हैं, चाहे आप इसको एक्टिव पावर कहिए, चाहे आप इसको ट्रू पावर कहिए, चाहे आप इसको रियल पावर कहिए। इट इज मेजर्ड इन किलोवाट और मेगावाट। जो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट विल बी वॉट, देन किलोवाट, और उससे ऊपर जाएंगे तो मेगावाट, और उससे ऊपर जाएंगे तो गीगावाट। इट इज एक्चुअल आउटकम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम विच रन्स द इलेक्ट्रिक सर्किट और लोड। ये फाइनली जो हम जिसके थ्रू रन करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, वो है ये पर्टिकुलर सर्किट। दूसरा है आपका एपेरेंट पावर। तो एपेरेंट पावर क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज एपेरेंट पावर। दिस पावर इज मेजर्ड इन kVA वोल्ट एम्पियर और किलो वोल्ट एम्पियर
और मेगा वोल्ट एम्पियर और गीगा वोल्ट एम्पियर। अब यहां पे एक टर्म्स आता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर क्या है? रूट मीन स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ, जैसे हमें कोई मान लो मैक्सिमम पावर दिया हुआ है या मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है Vm, तो इफ आई विल डिवाइड देम बाय रूट 2 देन द वैल्यू विल बी कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर वोल्टेज और करंट। तो ये जो है आपका एपरेंट पावर है, इसका यूनिट वोल्ट एम्पियर होता है। जनरली हम इसको P इज इक्वल टू VRMS IRMS से डिनोट करते हैं। अब आता है नेक्स्ट टर्म, दैट विल बी द रिएक्टिव पावर, the power which flows back and forth, that means it moves in both the direction in the circuit or reacts upon itself, is called reactive power. The reactive power is measured in kilovolt ampere reactive kVAR और mega volt ampere reactive। स्मॉल लेवल पे हम इसकी डिमांड करते ही नहीं है, ये हमेशा किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में ही होता है। तो रिएक्टिव पावर क्या है? रिएक्टिव पावर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव पावर एज वेल एज कैपेसिटिव पावर। जो भी हमारा एक्टिव पावर के अलावा जो रिवर्स बैक वाला जो पावर होता है, दैट विल बी कॉल्ड द रिएक्टिव पावर। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें हम लोग पावर ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा वो क्या कहता है? नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों ने लिया है टॉपिक, दैट विल बी द पावर ट्रायंगल। यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पावर ट्रायंगल क्या होता है, कैसे होता है। तो पावर ट्रायंगल की जब मैं बात करूंगा तो इसमें आप देखिए, व्हेन एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सर्किट वोल्टेज V, इट रिजल्ट्स इन एक्टिव पावर। ऑब्वियस सी बात है, पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। इट इज दिस पावर विच प्रोड्यूसेस टॉर्क इन द मोटर, हीट इन द हीटर। दिस पावर इज मेजर्ड बाय द वॉटमीटर। अब आपसे कई बार यह भी पूछा जाता है कि एक्टिव पावर की एप्लीकेशंस कहां पे होती है। तो इन एवरी इंडस्ट्री व्हेन वी नीड टू स्टार्ट ए मोटर, टॉर्क चाहिए हमें, मतलब मोटर को चलाना है, या हमें हीट चाहिए हीटर से, वहां पे हम एक्टिव पावर ही यूज करेंगे। और ये जो एक्टिव पावर है दैट विल बी इक्वल टू VI cos phi। तो ये पावर ट्रायंगल है और आपको मैं बताता हूं कि इस पावर ट्रायंगल में कैसे हम लोग आगे जाएंगे। दूसरा है व्हेन द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सर्किट वोल्टेज, इट गिव्स रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव कंपोनेंट कौन कौन से है? आइदर इंडक्टिव कंपोनेंट होगा या कैपेसिटिव कंपोनेंट होगा, या दोनों को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस कंपोनेंट। तो रिएक्टिव कंपोनेंट जो होगा मल्टीप्लाइड बाय द सर्किट वोल्टेज, इट गिव्स रिएक्टिव पावर। ये हमें रिएक्टिव पावर देता है। दिस पावर डिटरमाइन द पावर फैक्टर एंड इट फ्लो बैक एंड फोर्थ इन द सर्किट। इसी पावर के कारण हमारा जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी से जो है वो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। जैसा रहेगा ये रिएक्टिव कंपोनेंट, उसी हिसाब से ये लैग और लीड करेगा एक्टिव पावर फैक्टर। From the power triangle shown above the power, the factor may be determined by taking the ratio of true power to the apparent power। अब आपसे अगर कभी दो पावर देके और ये पूछ लिया जाए कि आप पावर फैक्टर बताइए क्या होगा cos phi की वैल्यू, तो आप सिंपली डिवाइड कर सकते हैं एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर, KW by KVA, दैट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। और ये आप ट्रायंगल आप देखिए, अपरेंट पावर जो है दैट विल बी द हाइपोटेनियस, रिएक्टिव पावर 90 डिग्री इससे आगे जा रहा है एक्टिव पावर से, और ये जो S है दैट विल बी द अपरेंट पावर अंडर रूट PA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर। S इज द रिएक्टिव पावर, ठीक है। रिएक्टिव पावर Q है आपका, एक्टिव पावर P है, और S इज द अपरेंट पावर। अगर आप निकालना चाहते तो उससे भी डायरेक्ट निकाल सकते। क्लियर है ये चीज? क्योंकि जब आप पी स्क्वायर की बात करेंगे तो V स्क्वायर I स्क्वायर cos phi स्क्वायर प्लस V स्क्वायर I स्क्वायर sin phi स्क्वायर। अब VI अगर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi, और हमें पता है इन द ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi इज इक्वल टू 1। तो फाइनली S इज इक्वल टू अंडर रूट V स्क्वायर I स्क्वायर, या S इज इक्वल टू VI, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अपरेंट पावर। तो अगर हमें एक्टिव और रिएक्टिव पावर के थ्रू अपरेंट पावर निकालना हो, इट्स अ वेरी सिंपल, अपरेंट पावर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इससे हम निकाल सकते हैं। तो ये आपका था एक पावर ट्रायंगल डायग्राम जो मैंने आपको समझाया। इसमें से अगर दो पावर आपको पता हो तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्ड पावर, आप तीसरा पावर निकाल सकते हो। अगर आपको मान लो अपरेंट पावर दिया हुआ, एक्टिव पावर दिया है, आपसे कहा जाए कि यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर, आप निकाल सकते इजीली। क्लियर है ये चीज? तो गाइज
द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ पावर सिस्टम 1 इज कंप्लीटेड नाउ। इसमें मैंने 3 फेज रिव्यू ऑफ 3 फेज सिस्टम भी डिस्कस कर दिया आपको मैंने पावर सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने टाइप के पावर थे, एक्टिव, रिएक्टिव और ये अपेरेंट पावर, ये भी डिस्कस हो गया। इसके अलावा अगर आप इसमें डिटेल से जाना चाहते हैं तो डिटेल्स के लिए आप बुक रेफर करिए। वैसे आपको इतने डिटेल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा का सारा मॉड्यूल ओनली 4 आवर्स में है। तो आपसे सिंपली पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा कि एक्सप्रेस द टर्म्स ऑफ 3 फेज पावर सिस्टम, रिएक्टिव पावर क्या होता है ये पूछा जाएगा, या आपसे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है तो ये पूछेगा कि ड्रॉ द पावर ट्रायंगल डायग्राम टू एक्सप्लेन द 3 फेज पावर। तो आप ये पावर ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ करके उसको बता सकते हैं। Before that, I will suggest you a student, if you are the student of electrical engineering or faculty in electrical engineering department in any university across the country, kindly subscribe my channel and share with your friends. And after 15 October, I will go to to make a video regarding the recruitment section also of electrical engineering as well as engineering sector jobs. So guys, wish you all the best. Your first module of Power System 1 syllabus according to IKG PTU is right now completed. Thank you guys. Wish you all the best.